بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر نیاز بول رہی ہوں. میں آج آپ کو ڈائبٹیز کے بارے میں بتاؤں گی. ڈائبٹیز کو اردو میں ڈائبٹیز، ذیابطیس یا شوگر کی بیماری بھی کہتے ہیں. ڈائبٹیز جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ٹائپ 1 اور ایک ٹائپ 2. ہم آج ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں بتائیں گے. یہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ایشین لوگوں میں بہت کامن ہوتی ہے اور عموماً 30 سے 40 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے. جو ڈائبٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جسم جو ہے وہ انسولین بناتا تو ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ انسولین یا تو تھوڑی مقدار میں بن رہی ہوتی ہے، یا پھر اگر جو بن رہی ہے تو وہ جو شوگر کے سیل ہیں اس پہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جسم میں بہت زیادہ شوگر ہو جاتی ہے، لیکن آپ کا جسم جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سک رہا ہوتا ہے. اچھا، اس میں سب سے اہم بات ہے کہ ڈائبٹیز آدھے سے زیادہ لوگوں میں جب ہوتی ہے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے. اور اگر وہ کسی اور وجہ سے خون کا ٹیسٹ کروائیں یا پیشاب کا ٹیسٹ کروائیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ڈائبٹیز ہے. جیسے یہ بندہ ہے بڑا خوشی خوشی ہے پھر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے. کچھ لوگوں میں سمٹمس ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے. جیسے کہ یہ بندہ ہے، اس کو بہت پیاس لگ رہی ہے. جب آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو پھر پیشاب بھی زیادہ آتا ہے. دن کو اور رات کو اٹھ کے لوگ پیشاب کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، اور اسی طرح کچھ لوگوں کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا وزن تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، نیند آتی ہے، بہت سونے کے باوجود بالکل تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں. اگر ڈائبٹیز جو ہے وہ کافی عرصے سے آپ کے کو ہو تو وہ آپ کی آنکھوں پہ بھی افیکٹ کرتی ہے اور آپ کو جو ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے، آپ کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو پھوڑی پھنسیاں زیادہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ اگر زخم بن جائے تو زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. اسی طرح مردوں کو مردانہ کمزوری بھی ہو جاتی ہے. یہ سلائیڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈائبٹیز آپ کے جسم کے اندر کس طرح خرابی پیدا کرتی ہے. یہ ہمارے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کی اور نسوں کی جو ہے وہ پورا ایک جال بچھا ہوتا ہے. ڈائبٹیز کیا کرتا ہے کہ یہ جو خون کی شریانیں ہیں وہ اور نسیں جو ہیں ان دونوں کو تباہ کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ دونوں کی دونوں خراب ہو جاتی ہیں. جب خون کی نسیں خراب ہوتی ہیں تو ظاہرہ آپ کو خون کی سپلائی نہیں ملے گی. خون کی سپلائی ضروری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جسم کے اندر جتنی بھی نیوٹرینٹ ہیں یا جو آپ کا جسم یوز کرتا ہے وہ ساری کی ساری سپلائی آپ تک نہیں پہنچے گی. اسی طرح ہمارے جسم کے اندر جو میڈیسن ہوتی ہے وہ نہیں پہنچتی آپ کے جسم کے اس حصے میں جہاں پہ کہ نسیں خراب ہو جائیں. اسی طرح جب نسیں خراب ہوتی ہیں تو آپ کو سینسیشن آپ کی ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کسی حصے میں جو ہے وہ چوٹ لگ گئی ہے، کوئی چیز گرم ہے، کوئی چیز ٹھنڈی ہے، یا آپ کو کوئی درد کا احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ڈائبٹیز کی ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ڈائبٹیز جسم کے ہر حصے کو جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے اور تباہ کرتا ہے. اب جو موٹی موٹی جو چیزیں جو آپ کے جسم کے حصے کی خراب ہوتی ہیں وہ یہ جو اس سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. ڈائبٹیز میں لوگوں کو ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو لانگ ٹرم ڈائبٹیز ہوتی ہے یا ان کی ڈائبٹیز بہت پرانی ہوتی ہے تو اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہو تو بعض دفعہ ان کو بہت زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی. اسی طرح دماغ کی اگر جو ہے وہ شریانیں بند ہو جائیں تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سفید موتیہ جو ہے وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی طرح آنکھوں کے پیچھے جو نسیں ہیں وہ سوکھ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی آنکھیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں. اور جو ہے وہ یہ اگر آنکھوں کی نسیں جو ڈیمیج ہو جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو یہ دوبارہ آپ کی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے جو ہے جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ہر سال جو ہے وہ ڈائبٹک
स्क्रीनिंग, एक खास किस्म का टेस्ट होता है, तो वो देखते हैं कि नसें ठीक हैं कि खराब हैं। अगर खराब हो रही हो तो वो उनको पहले ही जो है वो लेजर से ठीक कर सकते हैं। इसी तरह ये गुर्दे पे भी असर करती है और जो है गुर्दे फेल हो जा सकते हैं। पाँव पाँव के अगर आप सेंसेशन ना हो और आप किसी चीज़ के ऊपर पाँव रख दें और आपके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो, तो आपकी जो है वो सारी की सारी डैमेज, इवन बोन तक डैमेज हो सकती है। इसी तरह मर्दों को मर्दाना कमज़ोरी होती है। मैं अब अगली स्लाइड आपके जो है वो पाँव पे ज़्यादा जो है वो तवज्जो करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि खून की नसें और जो है आपकी जो सेंसेशन की नर्व्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पाँव के अंदर कोई चोट लग गई है। अब चोट लगी है तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि चोट लग गई है। तो ये छोटा-सा ज़ख्म सा आपका बन जाएगा। अब इतने ज़ख्म पे तो आपको, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि ज़ख्म बना हुआ है। अब क्योंकि खून की सप्लाई या शरीयानें भी ख़राब हो गई हैं, तो नॉर्मल क्या होता है कि जब कोई जगह पे चोट लगती है तो आपकी खून की सप्लाई वहाँ पे बढ़ जाती है, जगह लाल हो जाती है, तो उसके बाद जो है उसके अंदर जो खून के अंदर सेल होते हैं तो वो उसको ठीक कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। अब डायबिटीज़ में दोनों चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो ये ज़ख्म जो है आप परवाह भी नहीं करेंगे क्योंकि आपको तकलीफ़ ही नहीं हो रही ना, और खून की सप्लाई नहीं आ रही, तो क्या होता है कि ज़ख्म जो है वो गहरा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद है इसके इर्द-गिर्द, तो इसका मतलब है कि खून की सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ तक देखें कि कितना डी जो है गहरा ज़ख्म हो गया है, तकरीबन हड्डियों तक पहुँच गया, लेकिन इस बंदे को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। और जो है अब जब ये ज़ख्म इतना गहरा हो जाता है तो आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो है उनकी उँगलियाँ काटनी पड़ जाती हैं। तो यही होता है इस तरीके से कि उनकी जो है ना इतना ज़हर जो है इतना गहरा ज़ख्म हो जाता है कि जो है उसका वो ठीक नहीं होता, तो आपकी जो है ना उँगलियाँ काटनी पड़ जाती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड भी मैं यही बताना चाह रही हूँ कि शुरू के स्टेज में ये कि हल्का-सा जो है वो ज़ख्म जो है वो आपका ब्राउन सा हो जाता है या डार्क कलर होता है, आहिस्ता-आहिस्ता स्किन जो है शुरू जो सुपरफिशियल स्किन है वो उतर जाती है, फिर डीप ज़ख्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा डीप उसके बाद होना शुरू हो जाता है। अब आप ये जो कॉम्प्लिकेशन है इसको कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड आप देखें। तो आपको ज़रूरी है कि आप जो है अपना पाँव रोज़ जो है साबुन से और गर्म पानी से जो है ना वो धोएँ और उसको जो है अच्छी तरीके से तौलिए से ड्राई करें। मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है या तेल जो भी आपने लगाना है उसके लुब्रिकेशन के लिए, तो वो आप जो है वो पाँव के ऊपर लगाएँ, उँगलियों के अंदर बीच में ना लगाएँ, क्योंकि अगर उँगलियों के अंदर होगा, चिकनाई रहेगी, तो वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा होता है। पाँव जो है वो अपने हर कुछ दिनों के बाद ज़रूर देख लिया करें, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा है कि हल्का-फुल्का ज़ख्म हुआ है तो फ़ील ही नहीं हुआ पेशेंट को और उसके बाद वो बड़ा हो जाता है, तो आपको कम से कम नज़र आ जाए तो आप एहतियात शुरू कर दें। इसी तरह आप अपने नाखून जो काटें तो वो बहुत ज़्यादा गहरे या डीप मत काटें। थोड़ा-थोड़ा सा जो है वो नाखून बाहर की तरफ रहने दें, जिस तरह आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हल्का सा नाखून जो है वो नज़र आ रहा है, सफ़ेद पोर्शन जो है ना, तो इस तरीके से काटें। जो सॉक्स पहने तो जो मोज़े हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। इसी तरह जो है जब आप शूज़ पहनते हैं, जो आपके जूते हैं वो भी जो है कंफर्टेबल होने चाहिए और गीले नहीं होने चाहिए। नंगे पाँव जो है वो आप ना फेरें क्योंकि चोट लगने का खतरा है। इसी तरह आप अपने जूते भी चेक कर लिया करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जूतों के अंदर छोटी बहुत सा को कंकड़ या कोई अम, पड़ा होता है या फिर जो है वो जूता अंदर से ख़राब हो चुका होता है, तो जो कि आपके स्किन के ऊपर रगड़ करता है। तो आप अपने शूज़ भी चेक कर लिया करें। ये स्लाइड दोबारा मैं वही कहूँगी कि अपने पाँव का ख़ास ख़्याल रखें और जो है अब मैं आपको बारे में थोड़ा-सा बताती हूँ कि आप डायबिटीज़ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो डायबिटीज़ के लिए ये होती है कि आप अपना जो है खाने में एहतियात करें। बहुत ज़्यादा शुगर या मीठी चीज़ें जो हैं वो ना यूज़ करें। मीठे के अलावा जो है डायबिटीज़ के साथ जो है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी हाई होता है। तो कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल के लिए कि आप जो है अम,
ऑयल या तेल या घी वाली चीज़ें जो हैं वो कम करें। रोज़ के पराठे खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खाने के अंदर ऊपर तरी है तो वो तरी ऊपर से निकाल लिया करें। इसी तरह जो है एक्सरसाइज, सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है डायबिटीज़ कंट्रोल करने का वो एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज आप इतना करें, दिन में कम से कम, अगर रोज़ नहीं कर सकते आप तो हफ्ते में 3 दफ़ा एक्सरसाइज ज़रूर करें। और एक्सरसाइज के लिए अक्सर लोगों को ये एक्सक्यूज़ होता है कि जी कि मेरे तो घुटनों में दर्द है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं है कि आपने ज़रूरी अपने पाँव से चल के या भाग-भाग के एक्सरसाइज करनी है। आप अपना जो है वो कोई भी, इवन अगर बैठे-बैठे भी आप अपने हाथ भी ज़ोर-ज़ोर से हिला लें या कंधे हिला लें, ऊपर वाला जिस्म का हिस्सा भी हिलाएँगे, तो आपके दिल की धड़कन तेज़ होती है, आपको पसीना आता है, आप थकते हैं, ये भी एक्सरसाइज है। कुर्सी पे बैठे-बैठे अपने पाँव बार-बार हिलाएँ, तेज़-तेज़ हिलाएँ, तो ये भी आपकी एक्सरसाइज है। कोई भी जो एक्टिविटी आप करते हैं, तो जिसमें आपका दिल की धड़कन तेज़ होती है, आपको थकावट लगती है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है। सीढ़ियाँ 7-8 दफ़ा ऊपर-नीचे चल लें, ये एक्सरसाइज है। तो अब जो है एक और बात, कि डायबिटीज़ जो है जब हो जाती है, तो वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप उसको कंट्रोल रख सकते हैं। और जो डायबिटीज़ अगर आपकी कंट्रोल हो, तो आपकी जो है आहिस्ता-आहिस्ता मेडिसिन कम भी हो सकती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन पे होते हैं, इंसुलिन पे होते हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज करें और अपना वज़न कम करें, तो डायबिटीज़ जो है वो बिल्कुल मेडिसिन से वो खत्म हो जाती है, उनकी मेडिसिन आहिस्ता-आहिस्ता। ये नहीं होता कि आप एक दिन एक्सरसाइज किए तो दूसरे दिन आप अपनी मेडिसिन ना खाएँ। लेकिन ये कि अगर आपका वज़न कम होता है, तो उसके हिसाब से आपकी डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल हो सकती है। ये नहीं मैं कहती कि हर एक की बंदे की जो है वो अच्छी कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं और हम कर सकते हैं, और ताकि आप जो है वो डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकें। जिस तरह ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई है, अब आप में से कौन चाहेगा कि आप डायबिटीज़ कंट्रोल ना करें और आप इसमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको हो? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और आप लोग जो हैं वो एक्सरसाइज़ करके और जो अपनी डाइट और अपनी सेहत का ख़्याल रखेंगे, ताकि जो है वो डायबिटीज़ कम से कम हो। अपनी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।